Now our next topic is notional profit. So class, when you prepare a contract account, आपको जो contract account में balancing figure मिलेगा या तो आप जो contract account से find out करने वाले हो, what you are going to find out, you are going to find out the profit. But जो आपको contract account से profit मिलेगा, ठीक है, that is not your real profit, that is only the notional profit. ठीक है, now what is a notional profit? It is just an estimated profit, it is not a real one. रियल प्रॉफिट एंड लॉस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सेपरेट आई विल बी प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड रियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे नॉर्मल कि मुझे कितना प्रॉफिट चार्ज करना है या तो कितना कॉन्ट्रैक्ट में हुआ या तो लॉस इनकर्ड हुआ है वो मुझे पता चलेगा। बट बेसिकली थ्रू अ नोशनल प्रॉफिट व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, दिस इज नॉट माय रियल प्रॉफिट, हम सिर्फ उसका एस्टिमेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ मुझे जितना काम कंप्लीट हुआ है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। So it is also defined as it is a difference between the value of a work certified, ठीक है, value हाँ class, amount whatever would be the amount of the work WIP certified and the cost of WIP certified. आप इसके बीच में क्या देख रहे हो, आप सिर्फ इसका दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो। जो वैल्यू है उसमें से आप क्या फाइंड आउट, उसमें से आप कॉस्ट को सबट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग अप द नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। नाउ अनदर फॉर्मूला विच सी जो लिखा है सेंटेंस में उससे ही हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज वैल्यू ऑफ WIP सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ WIP सर्टिफाइड। आप अमाउंट लोगे प्लस उसके बीच का जो भी कॉस्ट लोगे तो दोनों के बीच का आपको जो भी मिलेगा दैट वुड बी द प्रॉफिट अल्टीमेटली। Now, the second one, the second formula which you can use if the information is not given of the cost of W, that is work certified, तो फिर आप जो second formula use कर सकते हो, it can be value of work certified minus total cost incurred till date. अब तक आपने कितना प्रॉफिट, अब तक कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, और अभी तक आपका कितना काम कंप्लीट हो चुका है बट कितना अनसर्टिफाइड है वर्क, उसको सबट्रैक्ट कर दोगे, देन आल्सो यू विल बी गेटिंग अप द नोशनल प्रॉफिट। से लेट्स टेक वन एग्जांपल, से आपका जो वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड का इज 25 लाख, ओके, आई एम just keep in the mind, value of work certified is 25 lakhs, cost of work certified is 10 lakh. Tell me the notional profit in the chat box. Again I'm repeating, value of a work certified is 25 lakhs, cost of the work certified is 10 lakh. Find out the notional profit. What will be the notional profit? The formula is there in front of you. Yes, notional profit is nothing but it is a value of a work certified minus cost. मैंने कितनी वैल्यू बोली अपने एग्जाम्पल में? 25 lakh. And what was the cost which I told you was 10 lakh. So 25 lakh minus 10 lakh करोगे तो how much you will be getting? You will be getting a notional profit of 15 lakh. Correct. Now let's take another example. ठीक है, जहां पर आपका ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। चलो, now the same value of work certified is 25 lakh, cost of work uncertified is 2 lakh, total cost incurred till the date is 12 lakh. Again, value of a work certified is 25 lakh, cost of the work uncertified is 2 lakh, and the total cost incurred till date is 12 lakh. You just have to put up this into the formula. That's it. मैंने कितनी वैल्यू बताई थी? I told you the value of 25 lakh minus I gave you the total cost incurred till date as well. कितना बोला? 12 lakh का. So subtract 12 lakh in bracket just, and then I told you that cost of work uncertified was rupees 2 lakh. So 25 lakh minus 10 lakh. This will give me 15 lakh. समझ में आया? दोनों फॉर्मूला से किया तो अल्टीमेटली देखो फर्स्ट फॉर्मूला से भी जब मेरा दिस वर्क सर्टिफाइड वाज 25 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड वाज 10 लाख, तो देखो वो फॉर्मूला से भी किया तो आई गॉट अ 15 लाख,
एंड वंस अगर वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है बट दे हैव गिवन द टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो उससे भी आप अगर दैट ऑल्सो इफ यू यूज द फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग द सेम नोशनल प्रॉफिट ऑफ 15 lakh. Okay, now this normally notional profit is computed every year. Class, this is जितना भी साल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, every year you are going to this compute the notional profit. Now this notional profit which you are computing every year will be in the respect of value of work certified. आप ये फाइंड आउट करोगे किससे, आपको किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ओके, एक्चुअली में क्या होता है ना क्लास, ओनली अ पार्ट ऑफ नोशनल प्रॉफिट इज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर. और जो भी हमारा बैलेंस बन जाता है ना, मैंने क्या बोला, सिर्फ पार्ट हम ट्रांसफर करते हैं, और जो भी हमारा बैलेंस बन जाता है दैट वी क्रेडिटेड टू द रिजर्व. वाई, हम रिजर्व में क्यों डाल देते हैं कि अगर मेरा कोई अनफॉर्चुन कंटीजेंसीज आ गया, अगर मुझे कुछ फ्यूचर में ऐसा इवेंट आ गया जहां से मुझे पैसा की जरूरत पड़ गई, तो मैं अपने रिजर्व अकाउंट में से पैसा ले सकती हूँ. So that is why only a part of the notional profit is actually treated as a profit and loss and other part is credited in the reserve. Now percentage of the profit कितना मुझे credit करना है profit and loss account में, वो depend किसके ऊपर करेगा, it will get depend upon the ratio of work certified to the contract price and the ratio of cash received to the work certified. And इसका एक procedure है कैलकुलेट करने का कि कितना परसेंटेज मेरा ट्रांसफर होगा, तो वी कैन यू कैन यूज अ टेबल टू फाइंड आउट एंड देन वी कैन डू इट अप. पर हमेशा ये चीज याद रखना, ओनली एंड ओनली द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, little portion will be credited to the profit and loss account and it should always depend on the stage of the completion. कितना WIP complete हुआ है, depending upon that you are going to transfer it up. ठीक है, एंड दिस स्टेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड रेफर टू द सर्टिफाइड वर्क ओनली. आप उसमें वर्क अनसर्टिफाइड का कुछ भी अमाउंट नहीं ले सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टडी दैट टेबल के कैसे मुझे ट्रांसफर करना है, मुझे कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, कितना प्रॉफिट मुझे ट्रांसफर करना है, दिस इज अंडर द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड. जितना जितना परसेंटेज मेरा कंप्लीट होते जा रहा है, दैट अमाउंट आई नीड टू ट्रांसफर इट अप. So first one, the heading will be number of work percentage, sorry, of work certified और percentage of completion. Because मैंने आपको क्या बोला, वो completely किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क सर्टिफाइड के ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ पर हम वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लेंगे क्योंकि अभी भी वो काम खत्म होना बाकी है. आप प्रॉफिट कब तक किस में से ले सकते हो, जितना काम आपने कर दिया है आप उसमें से ही प्रॉफिट निकाल सकते हो. जो अब तक बाकी, आप उसका ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ वो फ्यूचर में होने वाला है ना काम कंप्लीट, तो आप वो फ्यूचर प्रॉफिट है आपका. एट प्रेजेंट जितना काम कंप्लीट हुआ है, जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू ट्रांसफर इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ द वेरी फर्स्ट केस इज 0 to 25%. मतलब आपका अगर से फॉर एग्जाम्पल इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और काम अभी भी पूरा 25% भी कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज लेस देन 25%, तो आप कुछ भी, देयर इज नो प्रॉफिट शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट. कुछ भी प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी तक तो सिर्फ काम शुरू हुआ है और 25% काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है. यू कैन नॉट इंक्लूड 25%, यू हैव टू टेक लेस देन 25%. सो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नील, मतलब जीरो. यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉफिट क्योंकि आपने जस्ट इनिशिएट किया है. व्हाट इज द सेकंड केस? नाउ सेकंड केस इज दैट अगर आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% एंड 50% कंप्लीट हुआ है, दैट इज बिटवीन 25% एंड 50%, नॉट होल ऑफ द 50%, बिटवीन 25 to 50%, तो 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो जो भी आपको नोशनल प्रॉफिट मिलेगा उसका 1/3 यू हैव टू टेक इट अप इन द रेशियो ऑफ व्हाट, cash received divided by work certified. That is, I can say in the ratio of cash received to का मतलब होता है divide, work certified may be transferred to profit and loss account. ठीक है, again 1/3, ठीक है, into notional profit
कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ऑब्वियसली वर्क सर्टिफाइड भी आपके पास होगा कि कितना मेरा कंप्लीट हुआ है वर्क, और कंप्लीट होने के बाद आर्किटेक्ट ने या तो सर्वेयर ने और यू कैन से द इंजीनियर ने कितना उसको सर्टिफाइड किया है। नाउ नेक्स्ट, and this percentage also it will be given in the question कि this much of the work is completed. Now if your work is completed, that is your contract is completed between 50% to 90%, then you can say your 2/3 of the work is completed. So 2/3 of the notional profit will be transferred in the ratio, and this will be reduced कितने proportion में? Cash received divided by work certified. So ultimately देखो, हाँ, this portion is remaining the same, only you need to change this part. That is अगर 25 से 50 के बीच में है तो only 1/3, 50 से 90% के बीच में है तो 2/3 will be transferred. ओके, बट ये आप अमाउंट जो भी है वो किससे रिड्यूस करोगे? ऑब्वियसली बाय टेकिंग द पोर्शन ऑफ कैश रिसीव्ड टू द वर्क सर्टिफाइड. लास्ट वन, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन स्टेज में, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट यू हैव कंप्लीटेड अबाउट 90%, बट पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज बिलो 100%, तो यू जस्ट हैव टू टेक व्हाट यू हैव टू टेक, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कि कितना मुझे एस्टिमेट, कितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, even इसका you can take the next formula as well, इसका ही same formula, estimated profit into work certified divide by contract price. अगर कैश रिसीव नहीं दिया है तो कितना वर्क सर्टिफाइड है वो भी आप डिवाइड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से. ठीक है, सो यर कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन का 2-3 फॉर्मूलाज आर देयर. अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यू हैव टू टेक इट अप दिस. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया ना, और उतने बेसिस का तो पैसा भी तो मिल चुका होगा और आपका प्रॉफिट एलिमेंट भी उसमें इंक्लूडेड है, इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले रहे हो, डिवाइड यू आर डूइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. And what if your whole of the work is completed, that is 100% work is completed, and 100% work कब complete होगा? Obviously in the last year of the contract. So when if the 100% work is completed, entire contract is complete, there is no need to keep any reserve. आपको कुछ भी reserve नहीं करना है, आपका पूरा फिर वो profit हो जाएगा, and whole of this profit will be credited in the profit and loss. क्यों? एट दी एंड ना आपका कुछ भी अभी रिजर्व नहीं है, अभी तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा. सो एंटायर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड. बट व्हाट क्लास इफ द अगर लॉस हुआ तो? अगर लॉस हुआ, अगर इट इज पॉसिबल ना कि आपको हर एक कंस्ट्रक्शन में, हर एक इसमें प्रॉफिट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना, लॉस भी तो हो सकता है. सो इफ यू आर गेटिंग द लॉस, तो हम क्या, पता है हमारा कंसेप्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. अगर आपको पता है कि लॉस होने वाला है तो आप पहले से ही लॉस को रिकॉर्ड करके रखो. सो इफ द लॉस विल बी हैपनिंग, तो एंटायर लॉस विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आप प्रॉफिट को क्रेडिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली लॉस विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज हाउ you have to do the adjustments.